अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, स्माइल विद श्राव्स। We are approaching Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad. राजीव गांधी बहुत बड़ा एयरपोर्ट। This is Rajiv Gandhi International Airport. मुझे तो कोई महल लग रहा है। ये तो रोड है, वो भी कवर है। Rajiv Gandhi International Airport, also known as Hyderabad International Airport, is an airport that serves Hyderabad, the capital of the Indian state of Telangana. The airport is named after Rajiv Gandhi, the former Prime Minister of India. It was opened on 23rd March 2008 to replace Begumpet Airport, which is the old airport of Hyderabad. The strategically located Rajiv Gandhi International Airport at Hyderabad is well set to establish the city prominently on the global aviation map, thereby contributing to the prosperity, growth and all-round economic development of the region. बहुत जल्दी है भाई। This is the entrance gate. In every entrance gate, the passengers have to produce their ID proof and air ticket to the concerned personnel before entering the terminal. There are 46 immigration counters and 96 check-in desks with 19 kiosks for self-check-in. This is the self-check-in machine. All the airlines have their separate desks for luggage booking, wheelchair assistance and seat upgradation. This is the security check-in area. There are lots of branded shops and eateries in this airport. If you have adequate time before boarding the flight, you can explore various shops like Shoppers Stop, W.H. Smith, Parkos, Karachi Bakery, Toy Port, Biba, Heights, Krishna Pearls and Jewelers, Fab India, Da Milano Italia, Mochi, United Calso, Benetton, Forest Essential, मोची etc. इंटरनेशनल ब्रांड है क्या? यहाँ पे भी मोची, Indian paradise। Food lovers have various options to choose from various food joints like KFC, Subway, Burger King, Idli Factory, Mumbai Central, Barista, Cafe Coffee Day, McDonald's, etc. The airport is well equipped with services like free Wi-Fi, baby care room, shop and restaurant, information desk, luggage storage, medical services, pharmacy, ATMs, etc. Relax, refresh and rejuvenate at O2 Spa. Whether you choose a body massage, spa treatment or any astounding salon service, the highly trained therapists and beauticians will pamper you while coaxing your body into a state of serene tranquility, enhanced beauty and vigorous health. Escape the crowd and relax in the Plaza Premium Lounge prior to your flight from Hyderabad Airport in Level E. Await your flight in comfortable sitting, catch up on work and enjoy complimentary snacks and drinks. Plaza Premium Lounge is the world's largest award-winning independent lounge network open to all travelers. The airport serves 18 international destinations and 45 domestic destinations, making a total of 63 destinations with 18 foreign carriers and 9 domestic carriers. Hyderabad Airport is a hub for Alliance Air, Indigo, SpiceJet, Air India, Air Asia, Vistara, Go Air, etc. The airport has one passenger terminal, a cargo terminal and 2 runways. British Airways, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Scoot, Malaysia Airlines, Cathay Pacific, etc. are the airlines serving international destinations from Hyderabad. This is the baggage claim zone.
is the exit gate. Passengers flying to Hyderabad uses this gate to go out of the airport. ओके ओके जी जनाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। ही आला ऐसा लग रहा था मुझे। ये एयरपोर्ट है, इसके बारे में ये बात बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हर जगह जैसे प्लास्टिक के बड़े बड़े मतलब पन्नियाँ लगाई हों बिल्कुल न्यू रखने के लिए इसको, और जैसे कि जब यूज़ होता हो तब उखाड़ा जाता हो और इसको यूज़ करवाते हो और उसके बाद दोबारा से इनको बिल्कुल पैक कर दिया जाता हो। तो इनकी वॉल्स, इनके फ्लोर्स, चेयर्स, जो भी चीज़ें, जो भी शॉप, सब ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू ब्रांडेड, अभी के अभी जैसे खोली हूँ। आपको पता है एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जो 24 घंटे यूज़ होती है। 24 घंटे यूज़ होती है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इसको देख कर, लेकिन इतना साफ। बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। अच्छा, दूसरी बिल्कुल चीज़ ये है कि हैदराबाद एक बहुत बड़ा सिटी है, बहुत ही बड़ा सिटी है, तो एक बहुत बड़े सिटी के लिए एक बहुत बड़े एयरपोर्ट का होना भी ज़रूरी है। तो वाकई पता चल रहा है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाकई पता चल रहा है कि ये इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों है, क्योंकि हैदराबाद सिटी भी बहुत बड़ा है। अच्छा, सबसे बेहतर आपको इसमें कौन सी चीज़ लगी जो यूनिक लगी? स्पा वगैरह मैंने तो कभी नहीं सुना, कभी बहुत कम एयरपोर्ट्स में सुना है हमने। नहीं, हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा। हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ स्पा, वाईफाई, बिल्कुल। ये सारी। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कुछ यूनिक बनाना चाहता है एयरपोर्ट वगैरह के हवाले से, और वो चाहता है कि कुछ ऐसा बनाओ कि लोग देखते रह जाएं, लोग दंग रह जाएं, तो उसको एक दफ़ा ये वीडियो देख लेनी चाहिए, है ना? कि बनाना है तो ऐसा बनाओ, अगर बनाना वाकई चाहते हो। अच्छा, हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अगर बनाना चाहें, करें, तो किसी को सर्च कर लें, किसी को फॉलो कर लें, किसी को देख लें, और दूर क्यों जाएं, अपने पड़ोसियों को ही फॉलो करने में, तो ये कहती हूँ क्यों। अच्छा, मैं अक्सर ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हैं या कोई भी ऐसे मामले हैं, वो अगर इंडिया को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है यूरोप और अमेरिका को। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह ये कि हमारे जो मामलात हैं या हमारा जो माहौल है, जो हमारी नेचर है, हमारी जो हमारे माहौल, आबो हवा, क्योंकि वहाँ का सब कुछ सेम ही है। नेचर लोगों की जो है। अच्छा, हम वहाँ की अगर चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ के हवाले से वो इतनी इफेक्टेड ना हो, मैं समझता हूँ। बाकी ये कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हैदराबाद हमने कई मरतबा देखा, हैदराबाद की क्या कहते हैं अपना सिनेमैटिक वीडियोस भी हमने देखी, बहुत ही खूबसूरत। और इस मरतबा जब हमने देखा था 4K वीडियोस सिनेमैटिक, तो हमें बड़ा चेंज लगा था, नई बिल्डिंग। अच्छा, रामोजी, जब भी हम हैदराबाद की बात आती थी तो मैं हाईटेक सिटी और इसके अलावा रामोजी फिल्म सिटी मुझे याद आ रहा होता था। अब मुझे इसके साथ साथ एयरपोर्ट भी याद है, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी याद आया करेगा। अच्छा, अगर हम जैसा कोई लोग जिन्होंने काफ़ी वीडियो देख ली हो, तो अगर हम जैसा कोई बंदा इंडिया जाएगा तो हम तो कहेंगे मुझे इधर भी जाना है, मुझे इधर भी जाना है, मुझे इधर भी जाना है। अच्छा, आप यकीन करें कि आप बहुत इंटेलिजेंट है भाई, मान लिया मैं अभी क्या सोच रही थी कि मेरी फ्लाइट हो तो मैं बस इस एयरपोर्ट पे उतरूं, इधर भी जाऊँ। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद आपको मैं वीडियो में बहुत मतलब दिखाने की तो कोशिश की गई है, बट सिलेक्टेड चीज़ें देख पाता है इंसान। एक अपनी आंखों से देखना, हर चीज़ को देखना, समझना और चीज़ों को यूज़ करना, फैसिलिटीज़ को उठाना, तो ये चीज़ें तो रियल में ही हो पाती है ना मुमकिन। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी फ्लाइट यहाँ उतरे और फिर मैं पूरा एयरपोर्ट अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, सर्च करूँ, देखूँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मैं पूरी वीडियो में यही सोची जा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो हमें बता रही थी, एक तो इंग्लिश में बता रही थी और दूसरा बड़ा तेज़ी से बता रही थी, बहुत ही स्पीड से जा रही थी। मैं थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था चीज़ों को, लेकिन थोड़ा स्लो कोशिश क्या करें पकड़ने की, हाँ, इंग्लिश को पकड़ने की। ठीक है। खैर, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट हैदराबाद का। तो दोस्तों, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।